اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے، کیا اس روز ایسا دن ہوگا کہلائے گا جو خدا کو مقبول ہو؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں وہ یہ نہیں کہ ظلموں کی زنجیروں کو توڑو اور جموں کے بندھن کھولو اور مظلوموں کو آزاد کرو، بلکہ ہر ایک جوے کو توڑو؟ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہے اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنی ہم جسمی سے روپوش نہ کر، تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی ظاہر ہوگی اور تیری صداقت ہرابر ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا۔ کلام پاک پڑھے جانے پر خدا کی برکت ٹھہرے۔ کیا اب پورے ملک میں روزے ہیں، مسلم کے بھی اور کرسچن کے بھی، کیا ہم کیسا روزہ رکھتے ہیں؟ ہم آگے پیچھے تو روزہ نہیں رکھتے، لیکن روزوں میں ہم نے روزہ رکھنا ہے، لیکن کس مقصد کے لیے؟ کیا ہم روزہ رکھ کے اپنے ٹیلی ویژن کو دیکھ رہے ہیں، اپنے موبائل کو چیک کر رہے ہیں، یا اپنے گھر میں مذبح بچھا کے خاص خداوند کو ٹائم دے رہے ہیں؟ کیا ہم کسی بھوکے کو دیکھ کے کھانا دے رہے ہیں؟ ہمارے ارد گرد دیکھ لو، بہت سے غریب ہیں جو ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں، کیا ہم نے اس پر نظر کی ہے کہ وہ بھوکا ہے تو ہم اسے کھانا کھلا دیں؟ یا خدا کہتا ہے کیسا روزہ رکھتے ہو؟ کیسا روزہ ہے تمہارا روزہ؟ وہ جو عالم بالا پر سنائی دے۔ اور متی کی انجیل اس کا 16 باب کی 6 آیت کو پڑھیں گے تو اس میں بھی لکھا ہے، متی کی انجیل ہے نہیں، اس کا 6 باب ہے، 6 باب کی 16 آیت کو دیکھیں گے، 6 باب کی 16 آیت کو دیکھیں گے تو لکھا ہے، جب تو روزہ رکھے تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بنا، کیونکہ اب وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ انہیں روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے، بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ جو تیرا باپ پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ ہاللیلویا۔ آج دیکھیں لکھا ہے کہ تو اپنا منہ دھو اور اپنے سر میں تیل لگا اور جا کر پوشیدگی میں اپنے باپ سے التجا کر، تاکہ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اب یہاں پر یسعیاہ نبی کے صحیفے میں دوبارہ آ جاتے ہیں تو لکھا ہے کہ کیا تم ایسا روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا کرو؟ ایسا روزہ رکھتے ہو کہ غصہ دلاؤ؟ یا ایسا روزہ رکھتے ہو کہ تم لوگ کس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جو خدا کو پسند ہی نہیں آتا؟ میں کہتی ہوں روزہ وہ جو آپ روزہ کھولے نہیں اور جواب آ جائے، روزہ وہ رکھیں جو آپ کا روزے کا ٹائم نہیں ہوا وہ آپ کو جواب آ جائے۔ لکھا ہے کہ میں نے تجھے کہا کہ مظلوموں کو آزاد کرو، بندیوں کو آزاد کرو، جو وارا پھر رہے ہیں باہر بھوکے ان کو اپنے گھر میں لا کر روٹی کھلاؤ اور کپڑا پہناؤ۔ کیا ہماری زندگیاں مسیحوں کی ایسی ہے؟ اگر ہم دیکھیں نا پیارے بھائیوں پیاری بہنوں، تو یہاں پر بھی بیٹھے جتنے انسان ہیں، ہر ایک انسان بچے کے اندر پریشانی ہے، کوئی یہاں آزاد نہیں بیٹھا۔ کیا ہم خدا نے جو ہمیں احکام دیے ہیں، جو ہمیں حکم دیے ہیں، کیا ان میں ہم اس کو ہم مانتے ہیں؟ اس پر ہم چلتے ہیں؟ اگر یہی باب کی پہلی آیت دیکھیں تو لکھا ہے، گلا پھاڑ کے چلا، دریگ نہ کر، نرسنگے کی مانند اپنی آواز بلند کر۔ تو ابھی بھائی پاسٹر گا رہے تھے، نرسنگے کی مانند کی طرح گا رہے تھے، بیٹیاں گا رہی تھی نرسنگے کی مانند کی طرح گا رہی تھی۔ کیا ہمارے دل بھی چاک ہے؟ ہمارے دلوں میں بھی خدا نے اپنا روح رکھا ہے؟ ہماری کمزوریاں، ہماری بیماریاں، ہماری مشکلیں، ہماری تکلیفیں جو ہم سے دور جاتی ہیں، روزہ رکھنے کا مطلب ہے کہ اپنے پیٹ کو سزا دینی، اپنے منہ کو سزا دینی۔ روزہ رکھنے کا مطلب ہے خدا سے رفاقت کرنا۔
हालेलुया। कलाम पाक में खो जाना, कलाम पाक को पढ़ना, कलाम पाक की हर एक आयत पर अपना दिल लगाना। कलाम सारा ही सच्चा है, सबूत के साथ है। अगर आप अपनी मुश्किल खुदावंद के आगे रखते हैं ना, तो खुदावंद आपके, अगर बाय द वे आप अपनी जिंदगी में खुदा की हजूरी महसूस करते हैं, तो आपकी मुश्किल फौरी जाएगी। बेशक मुश्किल आ गई है आपके जिंदगी में। जब एक पास्टर जी ने ये दरमियान में रास्ता रखा है सीधा, कोई इधर से तो नहीं ना जा सकता, सब इधर से बाहर निकलेंगे, बाहर चले जाएंगे, लेकिन खुदा ने भी हमारे आगे सीधा रास्ता रखा है। और हम दाएं बाएं क्यों मुड़ते हैं? फिर रोजा रखते हैं तो कई लोग कहते हैं कि हमारा रोजा नहीं मंजूर होता, हमारी दुआएं नहीं मंजूर होती। क्यों नहीं हमारी दुआएं मंजूर होती? हम किस खुदा को मानते हैं जिसकी कब्र खाली है, जिसकी कब्र खाली है, हम उस खुदा को मानते हैं। तो फिर आपकी और मेरी जरूरत क्यों नहीं पूरी होती? वो तो कहता है मैं अपने महबूब को नींद ही में दे देता हूँ। जब वो अपने महबूब, क्या हम उसके महबूब हैं? हम उसके महबूब बन के दुआएं करते हैं, रोजे रखते हैं। वैसे तो अगर आप यहूदियों को देखें तो हफ्ते में 2 रोजे रखते हैं। ये 40 रोजे ही नहीं है हम पर मुकर्रर, हफ्ते में 2 रोजे हैं हमारे। क्या आप लोग वो 2 रोजे रखते हैं? चलो 2 को छोड़ो, 1 रोजा रखते हो अपने दुख के लिए, अपनी प्रॉब्लम के लिए, वो रोजा रखते हो? अगर रखते हो तो आमीन, खुदा आपके घराने को, अपनी औलाद को बरकत देगा, क्योंकि खुदा ने कहा है तू मेरी राह पर चल और कामिल हो जा, मेरी राह पर चल और कामिल हो जा। जब उसकी राह पर चलेंगे तो कामिल होंगे ना। खुदावंद नहीं चाहता कि हम गिरे हुए नजर आए, नहीं चाहता खुदावंद हम कमजोर नजर आए। मैं परसों रोजे के बारे में थोड़ी स्टडी कर रही थी, तो मुझे एक साइंस की गवाही मिली कि उन्होंने 15 दिन के रोजे का ना टेस्ट किया, और पहले रोजे में क्या हुआ, इंसान की जो कमजोरी होती गई, गिरता गया। दूसरे रोजे में गिरता गया। तीसरे रोजे में एकदम से एक मौजज़ा हो गया कि उसके व्हाइट सेल के वो हजार भर गए, जो ज्यादा हो गए, जो कि हमारे अंदर बीमारियों को खत्म करते हैं। और इसी तरह 15वें रोजे तक जब देखा तो उसकी चर्बी तक खुल गई थी, और उसके अंदर से हर तरह के इन्फेक्शन जा चुके थे, बल्कि वो पहले की तरह फिट फाट बंदा हो गया था। ये मेरे खुदा ने रोजे के मतलब साइंस को भी बता दिया कि रोजा में कितनी पावर है। जब आप रोजा रखते हैं तो आपकी बॉडी से वो जो जरासीम आपकी बॉडी के अंदर गए हैं, वो नेस्त होना शुरू हो जाते हैं, आप बॉडी में कमजोर नहीं पड़ते। अब देखो रोजे पूरे मुल्क में हैं, हाँ, दूसरी कौम जो है सुबह उठ के रखती है, और हमारा रोजा कितने वक्त का है? 24 घंटों का, शाम से शाम का। ये भी मैंने बाइबल में देखा है कि शाम से शाम तक। लेकिन क्या हमारे बहन भाई जो 10 बजे तक खाते हैं, जो 11 बजे तक खाते हैं, जो 12 बजे तक खाते हैं, उनका रोजा 24 घंटे का बनता है? बनते हैं उनका रोजा? तो फिर कैसे खुदा हमारी नहीं सुनता? फिर कहते हैं खुदा हमारी नहीं सुनता। यानी आस्टर के बारे में आपने कलाम सुना होगा, आस्टर मलका के बारे में 3 वक्त के रोजा रखा। पूरी यहूदी कौम ने 3 वक्त का रोजा रखा। तो क्या हुआ, जो उन्हें सूली पर चढ़ाने वाले थे वो सूली पर नहीं चढ़े, बल्कि वो चढ़ गए जो चढ़ाने वाले थे। सदर मिस्क अब्दुल नबू आग की भट्टी में क्यों नहीं चले? क्योंकि हफ्ते में 2 रोजे रखने वाले थे और खुदा की करीबी हासिल करने वाले थे। क्यों आग की भट्टी में नहीं सड़े? आज हमारे क्रिश्चियनों को आग की भट्टी में डाला जाए तो वो जल जाएंगे। क्यों जल जाएंगे? क्योंकि उन्हें काम पसंद है, खुदा की बारगाह नहीं पसंद है।
खुदा नहीं पसंद। बेशक हम नारे लाएंगे हालेलुया के, बेशक हम प्रस्तिश करेंगे, बेशक हम कहेंगे कि हम यीशु के हैं, लेकिन क्या होगा कि हम दिल को खुदा के करीब नहीं लाएंगे, तब जाके हमारा रोजा नहीं सुना जाता। फिर थी आजकल बड़ा इंतजाम है रोजो, भाई बहन मैं तेरा रोजा खिलावांगी, वीर मैं तेरा रोजा खिलावांगी। क्या भाई साहब रोजा खुलाने वाले को बरकत मिलती है? ठीक है, मिलती भी होगी, उसको मिलती भी होगी। वो आप सखावत कर रहे हैं, आपको सखावत की बरकत मिल रही है। वो आप सखावत कर रहे हैं, वो आपको सखावत की बरकत मिल रही है। सखावत का मतलब है कि आपका कारोबार बढ़ जाएगा। जितनी आप सखावत करेंगे वो आपका कारोबार बढ़ेगा। वो अपनी बरकत के लिए कर रहा है, क्योंकि सखावत खुदावंद ने कहा है कि तू सखावत करना ना छोड़, चाहे थोड़े पैसों में चाहे ज्यादा पैसों में, तू सखावत करना ना छोड़। लेकिन जिसने रोजा रखा है उसी का मकसद पूरा होना है। जिस मकसद के लिए रोजा रखा गया है वही रोजा पूरा होना है। क्या हम रखते हैं शाम से शाम का? शाम से शाम का, यानी कि खुदावंद ने कहा है कि तारों की छांव में जब खुदावंद का जलाल ही हमारे इर्द गिर्द रहेगा, जब खुदावंद ही हमारे इर्द गिर्द रहेगा, तो हमारा मुखालफत क्या करेगा? हमारा मुखालफत कुछ नहीं कर सकता जब खुदा हमारे साथ है। मेरी प्यारी बहन, मैं 5:30 रखती हूँ रोजा और 6:30 रोजा खोलती हूँ। 5:30 रखती हूँ और 6:30 खोलती हूँ। मेरे बच्चे कहेंगे मामा ये क्या? खाने में तो हम कंजूसी कर जाते हैं, थोड़ी ज्यादा कर जाते हैं, और रोजा खोलने में क्यों जल्दी करें? और आपको मैं बताना चाहूंगी, मेरा रोजा 3 नहीं बजते तो मेरे जवाब आ जाता है मेरे गुलाम यीशु के पास से। हालेलुया। और मैं जो ये 40 रोजे हैं इनकी मैं पाबंद नहीं हूँ, मैं पाबंद हूँ बाइबल के उन रोजों की जो हफ्ते में 2 रखे जाते हैं, जो मेरी आवाज आलमे बाला पर पहुंची जाए, आलमे बाला सुन ले। आप प्यारी बहनें, प्यारे भाई, आप प्यारी बेटियों, प्यारे बच्चों, ऐसा रोजा रखो जो आलमे बाला पर सुनाई दे, आलमे बाला पर सुना जाए। जब खुदा उतर आए आपको बरकत देने के लिए, वो कहता है तेरा रोजा ऐसा हो। किस मकसद से तू रोजा रखता है? तेरा मकसद क्या है रोजा रखने का? हम अपना मकसद खुदा को बताएं कि ये मकसद है मेरे बाप, मैं तेरे आगे रोजा रख रहा हूँ। तब जब आप रोजे में पूरे उतरेंगे, ना कि ये हाय मुझे रोजा लग रहा है, हाय ए वाला खाना पकाना है, मैं खाना जे ए मैं खोलना जे रोजा ए अच्छा जे खाना होवे फिर रोजा खोलना जे। हाँ जी, ये रोजा नहीं, रोजा आपने वो रखना है जो खुदा को मंजूरी हो, तो वो ही आपका इंतजाम करेगा, वो ही आपको रोजा खोलने वाला आपके आगे भेज देगा, वो ही आपके सारे तरीकों को जानता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर खुदा कहता है कि तू अपनी सूरत ना उदास रख, अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, सर में तेल डाल और मुंह धो, और पोशीदगी में जो तेरा बाप तुझे देखता है तुझे बदला देगा। जब खुदा ने कहा है कि पोशीदगी में, तो आप ज़ारा क्यों करें? ज़ाहिर से कहे कि देख भाई आज तो मेरा रोजा है, आज तो मेरा रोजा है, आज तो मेरा रोजा है। रोजा इसलिए हमने रखा कि हमारे घर में कोई प्रॉब्लम है, हमारी परेशानी है, हमारा दुख है, हमने इसलिए अपने पेट को दुख दिया, क्योंकि खुदावंद ने अभी मैंने ये नबी के सीखे से आपको पढ़ के सुनाया है कि जौ की तरह अपना सर झुका, जौ की तरह हमने अपना सर झुकाना है खुदा के आगे, तब जाके आने वाला पर हमारी दुआएं सुनाई देती हैं और खुदा खुद उतर आते हैं हमारे दरमियान। जब हम कहेंगे कि हम नहीं रोजा रख सकते, तो वो भी आप जो बहन भाई रोजा नहीं रख सकते, वो 3 वक्त की दुआ तो कर सकते हैं, बिना नागा 3 वक्त की दुआ तो कर सकते हैं। आप देखें रोजे की तरह वो दुआ भी आपकी सुनी जाएगी,
क्योंकि आप दिल और ज्ञान ध्यान के साथ कर रहे हैं। अभी पास्टर जी प्रस्तुत कर रहे थे, मेरा दिल बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा खुदावन तेरा शुक्र है, तेरे लोग हैं दिल से गाते हैं, क्योंकि पाक कलाम में लिखा है जहां पर रूह होता है वहां पर आजादी होती है। और रूह और साज मिल जाते हैं, राग और साज मिल जाते हैं तो खुदावन का पर छा जाता है। ये है, ये मेहनत करनी पड़नी है आपको। आपकी मजबूरियां जा सकती हैं, आज ही आपकी परेशानियां दूर जा सकती हैं, आज ही आपके घर में खुशहाली बहाली आ सकती है। क्या कि जब आप खुदा को उस नजर से देखेंगे जिस नजर से खुदा चाहता है मुझे देखा जाए। खुदा इंसान नहीं है, वो खुदा है, हमारा बनाने वाला, हमें दुनिया पर कायम करने वाला। हमने खुदा को उसी रतबे से पुकारना है, ये नहीं कि हमने खुदा को उस रतबे से नहीं पुकारना। आप देखें बहुत सारे पास्टर हैं और वो भी बस बाइबल को उठाते हैं और खुदा का कलाम सुनाना शुरू हो जाते हैं। पर अगर वो भी सुनाना शुरू हो जाते हैं ना, मैं ये नहीं जानती, मैं ये कहती हूँ कि खुदा जाने और वो जाने। हमारे घर आ गया है तो खुदा जाने और वो जाने। मैं आपको एक गवाही बताना चाहती हूँ। हमारे ऊपर ना इब्लीस ने एक जाल डाला बहुत बड़ा, और हम पूरी फैमिली लाहौर से गायब हो गई। पता ही नहीं चला, एक दिन में ही एक कॉल पर बाजी, उस लड़के ने कहा बाजी मेरी आपका सुना है बाजी शबनम आप आए अपनी फैमिली के साथ, तो मेरी बीवी बहुत बीमार है, दुआ करो। पता ही नहीं चला, मैं कभी अपने घर से अपनी फैमिली से निकलने की, अपने चर्च से निकलने की कोशिश नहीं करती थी और चले गए। तब जब मैंने आंख उठाई तो कोई चर्च नहीं था मेरे पास, कोई मेरे घर में खाना बहुत था। खुदा का शुक्र है मेरे हस्बैंड पास्टर है, लेकिन इनकी ठीक ठाक जॉब है, मुझे ऐसे रखते हैं, जो मैं चाहती हूँ वो मुझे देते हैं। शुक्र है मेरे यीशु का, ये उसकी बड़ी मेहरबानी है। तब मैंने इनसे कहा कि जी खुदा का हाथ मेरे से उठ गया है। तो इन्होंने कहा कि नहीं खुदा नहीं अपना हाथ अपने बच्चों से उठाता। मैंने कहा नहीं जी मुझे खुदा की हजूरी नहीं नजर आती। तो जिस दिन खुदा की हजूरी ना आए मैं बच्चों की मानिंद रोती हूँ कि खुदा दिखा दे अपनी सूरत मुझे।